Hello everyone, how are you? Today I came with the new topic from the human resource management. So earlier I have already discussed about the human resource planning, the different concept of the human resource planning and the objective of the human resource planning and why human resource planning is needed. Those who have not seen that particular video, so I have given the description, I have given the link to the description box, you can see it, okay, and subscribe my channel, okay. If you are not subscribed, so you are missing the more and important topic related to the human resource management, so subscribe it, okay. So today we discuss the different steps in human resource planning, okay. So what are the different steps in human resource planning? So today we will discuss on that particular topic. So before that, those who have not seen, repeatedly I am telling you, those who have not seen that particular topic, earlier one, human resource planning, the basic concept, see it, okay. Otherwise you will not able to get that particular topic, steps in human resource planning. So the first step in human resource planning is, first one is analyzing the organizational objective. First one is the analyzing the organizational objective, okay. So first step, the step one is analyzing the organizational objective. In every organization they are having certain objectives, okay. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप जाएंगे तो सबको ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको हम लोग मिशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव। हम ऐसे मान के चलते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस फार्म ने ये एस्टिमेट किया कि इस ईयर में हमको 2000 टन का प्रोडक्शन करना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट दे हैव टू प्रोड्यूस 20,000 टन ऑफ द मटेरियल, ओके। सो दे हैव टू produce. So this is the objective of the organization, okay. This is the objective of the organization. Now for that he have to actually do the human resource plan, because देखिए यदि 2000 टन प्रोड्यूस करना होगा यदि किसी भी कंपनी को, तो क्या करना होगा, उसके लिए तो मैन पावर चाहिए आपको, उसके लिए तो एनालाइज करना होगा। तो पहले क्या करना होगा, स्टेप वन में आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को पहले एनालाइज करना होगा कि हम इस ईयर में क्या करने वाले हैं। इस ईयर में हम 2000 टन प्रोड्यूस करेंगे या बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे अदर चीज में, या डाइवर्सिफाई करेंगे, क्या करेंगे इस बार, ठीक है। सो हम लोग पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बार की 2000 टन ही प्रोड्यूस करना है या एक्सपेंड करेंगे बिजनेस को या डाइवर्सिफाई करेंगे अदर बिजनेस में। उसके लिए क्या करना होगा, यदि आप डाइवर्सिफाई करेंगे बिजनेस को, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कोलगेट है, ठीक है, कोलगेट आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं अलग बिजनेस में, सपोज फॉर एग्जांपल वो चाहना चाह रहा है कि हम चले जाएंगे होटल इंडस्ट्री में, तो उसके लिए तो उसको कॉम्पिटेंट मैन पावर चाहिए, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना होगा आपको, कितना चाहिए हमको मैन पावर, ठीक है। इसीलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वन में हम लोग क्या करना पड़ता है, वी हैव टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। So either it is a 2000 ton production, either you are going to expand that particular business or diversify that particular business, as per depending on the objective you have to actually recruit the manpower. So you have to forecast the manpower requirement कि कितना चाहिए हमको manpower as per the organizational objective. So once you have analyzed your objective कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ये है कि हमको डाइवर्सिफाई करना है या हमको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, तो उस हिसाब से आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना होगा, फ्यूचर में एस्टिमेट करना होगा कि कितना मैन पावर हमको लगने वाला है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप टू। सो यू हैव टू एनालाइज द current manpower inventory. So first is the objective, next one you have to analyze the current manpower inventory. अब कंपनी के पास कितना मैन पावर है वो तो पहले आपको एनालाइज करना होगा, किस किस कैपेसिटीज का है, किस किस एक्सपीरियंस का है। सो इज दिस मैन पावर इन्वेंटरी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द स्किल, experiences, qualification, etc. This manpower inventory is consist with these variables, okay. So you have to understand what is the current status of my organization,
क्या है मेरा करंट और करंट स्टेटस क्या है मैन पावर का इन द ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। उसका स्किल सेट सबका कैपेबल है कि नहीं, उसके पास एबिलिटीज है कि नहीं, ये पहले आपको देखना होगा कि करंट जो मैन पावर है हम लोग के पास, उसके पास एबिलिटीज है टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर जॉब। यदि नहीं है तो आपको क्या करना होगा, एचआरपी लेना होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना होगी कि किस किस पोस्ट के लिए हमको वैकेंट लेना होगा, ठीक है, कि एचआरपी लेना है, कि प्रोडक्शन के लिए लेना है, कि ऑपरेशन के लिए लेना है, कि किसी अदर डिपार्टमेंट के लिए लेना है, आपको डिसाइड करना होगा क्या एज पर द करंट मैन पावर इन्वेंटरी। ओके, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप। हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू फोरकास्ट द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब पहले डिमांड को देख लेते हैं, हम लोग दोनों टर्म को एक साथ लगा दिए, वन बाय वन करेंगे। फोरकास्ट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर, ठीक है, ये वाला देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पहले डिमांड का देखते हैं, पहले डिमांड, सप्लाई बाद में आएंगे, पहले डिमांड को समझते हैं। भाई डिमांड में क्या करेंगे हम लोग को कितना रिक्वायरमेंट है, पहले खुद का डिमांड तो जाना कि किसी भी चीज हम जब खरीदने जाते हैं, किसी भी चीज को या गुड्स या सर्विसेज हो, चाहे हम मोबाइल भी खरीदने जाते हैं, वो जब तक मेरा डिमांड नहीं आता, नीड नहीं होता है, वांट नहीं बनता है, तब तक डिमांड करते हैं क्या कि चलो भाई खरीद ले, इससे मन हुआ चलेंगे क्या। जब तक आपका डिमांड नहीं रहता उस चीज में, आप लोग तो खरीदते नहीं है। तो पहले क्या करना होगा, जब तक ये डिमांड नहीं आएगा तब तक क्या करेंगे हम लोग, एचआरपी करेंगे क्या, नहीं करेंगे भाई, जरूरत नहीं तो क्यों करें, सीधा बात है भाई। सो पहले हम लोग को चेक करना है कि हम लोग का डिमांड क्या है। मैन पावर हमको स्किल्ड चाहिए, हाईली एक्सपीरियंस चाहिए, क्या चाहिए, आपको पहले डिसाइड करना होगा मेरा डिमांड क्या है। स्किल्ड मैन पावर चाहिए कि अनस्किल्ड मैन पावर चाहिए, कि एग्जीक्यूटिव लेवल टॉप लेवल वाला मैन पावर चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को, स्किल्ड या अनस्किल्ड मैन पावर, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग को करना है। तो ठीक है, इसको आप समझ लेते हैं। डिमांड जो है, ये डिमांड फोरकास्टिंग इसका डिफरेंट टेक्निक है, ठीक है। कुछ मैं टेक्निक आज बताने वाला हूँ डिमांड फोरकास्टिंग का। सो फर्स्ट है मैनेजरियल जजमेंट। मैनेजरियल जजमेंट क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए मैनेजरियल जजमेंट, नाम से देखिए इसका नेम क्या सजेस्ट कर रहा है। इन मैनेजरियल जजमेंट क्या होता है ना, जो डिफरेंट मैनेजर रहते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे एचआर हो गया, वीपी हो गया, वीपी एचआर है, बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव लेवल पर रहते हैं, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट, जो लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उन लोग का जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो रहते हैं, उसी से वो लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, एचआरपी को सजेस्ट करते हैं। मींस द मैनेजर को क्या रहता है, मैनेजर हैविंग द पास्ट एक्सपीरियंस, मैनेजर के पास क्या रहता है, द पास्ट एक्सपीरियंस रहता है, तो उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। सीधा सीधी बात है भाई, ठीक है। सो मैनेजरियल जजमेंट मेथड मींस एज पर द मैनेजर पास्ट रिकॉर्ड, मैनेजर क्या करता है, अपना पास्ट एक्सपीरियंसेस को काम में लाता है कि भाई अगले साल में हम लोग इस तरह से मैन पावर प्लानिंग किए थे, एचआरपी किए थे, सो इस बार हम लोग को इस हिसाब से करना है। तो एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैनेजर दे विल एक्चुअली फोरकास्टिंग द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट और दे विल डू द एचआरपी। देन नेक्स्ट वन इज वर्क स्टडी मेथड। ओके, नेक्स्ट वन इज द वर्क स्टडी मेथड। इन दिस मेथड यहां पर क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम। यहां हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जॉब का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले स्टैंडर्ड टाइम का। सपोज ऐसा मानते हैं कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमको स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर लगेंगे, ठीक है, 5 आवर लगेंगे, और मैन पावर कितना रिक्रूट होगा इसके लिए, 7, ठीक है। 100 प्रोड्यूसिंग द 100 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, ही रिक्वायर्ड 5 आवर एंड नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड 7, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 5, नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है, 5। यदि हम इसको बढ़ा के 200 यूनिट कर दिए, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा ये था ऑब्जेक्टिव पहले का, ठीक है, पहले का ऑब्जेक्टिव क्या था, नेक्स्ट हो गया, हम लोग बढ़ा के नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कर दिए, 200 यूनिट। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 10 आवर करना होगा इसको, एंड क्या करना है इसको, 14 एम्प्लॉइज लेना होगा, तब तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर पाए। अदरवाइज क्या होगा, यदि हम लोग इसको हटा देते कि भाई स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर ही रखते हैं इसको, ठीक है, मशीनरी इसको बढ़ा दिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मशीनरी और इंस्टॉल कर दी, तो टाइम तो 5 आवर ही लगेंगे, लेकिन मैन पावर कितना लगेंगे, 14 ही लगेंगे भाई। 7 जो मैन पावर था वो तो उस मशीन में बिजी है, बाकी 7 तो इस मशीन में लगेंगे, तब तो वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम में, ठीक है, लेकिन ये मैन पावर जो रिक्वायरमेंट है वो रिमेन सेम रहेगा,
ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से करते हैं कि पहले क्या करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम, कितना है स्टैंडर्ड टाइम लगेगा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड आफ्टर दैट वी डिसाइड दैट कितना मैन पावर इंप्लॉय करना है उसके लिए, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग फोरकास्ट कर लेंगे कि नेक्स्ट जो जितना हम लोग यूनिट बढ़ाए हैं उस यूनिट के हिसाब से हम लोग को कितना लगेगा मैन पावर, ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। वर्क स्टडी हो गया। अब आते हैं थर्ड है रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इस डिमांड फोरकास्टिंग का रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। देखिए हम लोग रेशियो ट्रेंड एनालिसिस में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग का जितने भी पास्ट डेटा रहते हैं, पास्ट डेटा, पास्ट रिकॉर्ड जो रहते हैं उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी रिसर्च पेपर वगैरह के लिए लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जो पास्ट डेटा रहता है, पास्ट जर्नल रहते हैं, उसका रिसर्च करते हैं पहले कि देखते हैं कि बस उसके रिलेटेड क्या क्या काम होता है। इसी तरह रेशियो ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट डेटा को, वी एक्चुअली फोकसिंग अबाउट द पास्ट डेटा, कि हम लोग पास्ट में किस किस टाइप से लिए हैं, एचआरपी किए हैं, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, पास्ट डेटा जो मेरे पास अवेलेबल है उसको एनालाइज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, मैन पावर कितना रिक्वायरमेंट होने वाला है, ठीक है। वर्कफोर्स स्टडी, वर्कफोर्स स्टडी, ओके। वर्कफोर्स स्टडी, देखिए वर्कफोर्स स्टडी में पहले आपको मैन पावर इन्वेंटरी चेक कर लेना होगा, मैन पावर इन्वेंटरी, ठीक है। मैन पावर इन्वेंटरी जो मैंने पहले आपको पढ़ाया कि why you have to analyze the current manpower position. So here we are analyzing the manpower inventory. Manpower inventory में मेरा skills कितना है. So in this method, first we have to actually calculate the current manpower inventory. मेरे पास manpower inventory में किस किस टाइप के employees हैं, स्किल कितना है, अनस्किल कितना है. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्किल अनस्किल को डिवाइड कर लिए, उसके बाद देखेंगे कि भाई उतना कैपेसिटी वाला एम्प्लॉइज है कि नहीं जो काम करेगा, नेक्स्ट वो जो टारगेट हमने सेट किए हैं उसको अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. सो वी हैव टू डिसाइड आइदर मैन पावर में सरप्लस है कि डेफिसिट है. यदि सरप्लस है और डेफिसिट है तो क्या है ये देखना होगा, सरप्लस है कि डेफिसिट है. यदि सरप्लस है तो नहीं लेंगे भाई, डेफिसिट है तो लेना होगा. तो लेना होगा तो क्या करना होगा, ऐसा प्लानिंग करना होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है. वी हैव टू फर्स्ट सी द मैन पावर इन्वेंटरी, आइदर इट इज सरप्लस और द डेफिसिट. यदि सरप्लस होगा तो नहीं लेंगे, यदि डेफिसिट है तो लेंगे, सीधा सीधी बात है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं, वर्कफोर्स हो गया. इसके बाद चलते हैं वर्क लोड एनालिसिस, ठीक है. इसी को 5 ही रखते हैं, और है 2-4 तो उसको ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, इतना ही तक काफी है, ठीक है. वर्कलोड एनालिसिस, इन वर्कलोड एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, ईच डिपार्टमेंट का हम लोग क्या करते हैं वर्कलोड को एनालाइज करते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सपोज फॉर उसका वर्कलोड को फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्कलोड एज पर द डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है. अब उस वर्कलोड को काम करने के लिए सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि एक डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉइज है, ठीक है, 3 एम्प्लॉइज है, ठीक है. उसका वर्कलोड बहुत है. सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि फैकल्टी मेंबर का मान लेते हैं, ठीक है. एक सपोज फॉर एक कॉलेज है, वहां पर एक फैकल्टी है जो एचआर पढ़ाते हैं, ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स फैकल्टी है, फैकल्टी मेंबर है, एचआर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एचआर पढ़ा रहे हैं, ठीक है. देखिए वहां पर 5 डे क्लासेस होते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि 5 डे क्लास हो, ठीक है, 5 डेज क्लास होंगे, ठीक है. उसके हिसाब से उसका जो वर्कलोड है स्टैंडर्ड हिसाब से कितना होना चाहिए वीक में, यहाँ पर 3 के हिसाब से चलते हैं तो 15 होगा, ठीक है. मैक्सिममली 4 के हिसाब से चलते हैं 20 होगा. लेकिन यहाँ एक फैकल्टी का 20 है, लेकिन उसका यदि सेक्शन 2 हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल बढ़ गया इस बार स्टूडेंट एंड 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया, ठीक है. तो एक जो फैकल्टी थे वो तो ऑलरेडी क्या कर रहे थे, 1 वीक में 20 लोड ले रहे थे. अब तो उसके लिए तब संभव नहीं है लोड लेना हो, तो क्या करेंगे, उसके लिए नया फैकल्टी रिक्रूट करना होगा आपको. तो क्या पहले हम लोग क्या किए, वर्कलोड को देख लिए कि भाई एक फैकल्टी का कितना वर्कलोड है. सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखना होगा एक पर्सन का कितना वर्कलोड है, ठीक है. उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना होगा, यदि उसका वर्कलोड ज्यादा हो जा रहा है तो उसको घटाना है और नया एम्प्लॉइज हायर करना है. इस हिसाब से हम लोग करते हैं, ठीक है. चलिए ये हो गया डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. आते हैं सप्लाई फोरकास्टिंग पे. सप्लाई फोरकास्टिंग देखिए सप्लाई फोरकास्टिंग कुछ नहीं है. सप्लाई फोरकास्टिंग यहाँ पर क्या है, हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोग किस सोर्स से, देखिए सप्लाई का काम क्या है, हम लोग जो एम्प्लॉइज लेंगे कहाँ से लेंगे, आइदर हम लोग इंटरनल सोर्स से ले सकते हैं और एक्सटर्नल सोर्स से ले सकते हैं. हो सकता है आइदर इट कैन बी इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स. क्या होगा आपको डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि किस टाइप का सोर्स होगा, आइदर इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल.
आपको देखना होगा भाई कि किस टाइप का सोर्स हम लेंगे। सो वी हैव टू डिसाइड एज पर द, आपको इकोनॉमिक सिचुएशन को देखना है कि किस टाइप है, वहाँ का मैन पावर सप्लाई क्या है, वहाँ बहुत ज़्यादा मैन पावर का क्राइसिस है या बहुत ज़्यादा सप्लाई है। और जैसे इंडिया के केस में यदि हम मान के चलते हैं तो यहाँ मैन पावर शॉर्टेज नहीं है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर है। लेकिन यदि हम स्किल्ड मैन पावर का बात करते हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, स्किल्ड हो, तो वो बहुत कम है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में है, ठीक है, बहुत स्मॉल में है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि वो हाईली स्किल्ड चाहिए कि नॉर्मल होने से भी चलेगा। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग क्या करेंगे, आइदर हम लोग इंटरनल से भी ले सकते हैं और एक्सटर्नल से भी। सप्लाई फोरकास्टिंग हम लोग देखेंगे कि हम लोग का डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, यहाँ पर कहाँ से हम लोग लेंगे, इंटरनल से ले लेंगे कि एक्सटर्नल से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक मेथड है मार्कोव चेन एनालिसिस, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसको टाइम लगेगा 2-3 है, ठीक है। आप ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते, इसको जस्ट चीज समझ लीजिए। इसको मार्कोव चेन एनालिसिस है, जस्ट ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है टू डू एनालाइज द सप्लाई ऑफ मैन पावर, ठीक है, ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है, ठीक है। सप्लाई फोरकास्टिंग जैसे कंप्लीट हो जाता है ये स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू एनालाइज और द फाइंड आउट द गैप, एनालाइजिंग द गैप, एनालाइजिंग द गैप। क्या करेंगे भाई, किसका गैप, मैन पावर का गैप। क्यों गैप, यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकता है, आइदर सरप्लस और डेफिसिट, ठीक। आपने एस्टिमेट किया, सारे कुछ आपने सही से किए, एचआरपी प्रोसेस को सारा फॉलो किए, डिमांड के फोरकास्टिंग के, लेकिन बाय मिस्टेक हो भी सकता है, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, सबसे मिस्टेक होता है, ठीक है। मिस्टेक हो गया, हम लोग का क्या होगा, सरप्लस हो गया, सरप्लस हो गया। अब सरप्लस हो गया तो उसको तो हटाना होगा भाई, नहीं हटाइएगा तो पैसा लगेगा, बैठे बैठे पैसा लेगा, काम तो है नहीं कुछ, क्या करेंगे, हटाना होगा। आइदर यू हैव टू टर्मिनेट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, हटाना होगा उसको किसी भी तरह से, या अदर जगह पे डिप्लॉय करना होगा, यही तो आपके पास सिचुएशन पड़ता है। तो आइदर इट कैन बी सरप्लस और आइदर इट कैन बी डेफिसिट। आपका क्या सोचता है, आपने ऐसा एस्टिमेट किया और बाद में देखे कि भाई डेफिसिट हो गया, हो सकता है कि डेफिसिट हो गया। सो इन द केस ऑफ डेफिसिट आपको फिर से एचआरपी करना होगा, फिर से रिक्रूट करना होगा, फिर से ट्रेनिंग देना होगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, बड़ा कॉस्ट। इसीलिए आपको क्या करना होगा कि एचआरपी जब कर रहे हैं तो डिमांड एंड सप्लाई को जब फोरकास्टिंग कर रहे हैं आपको सही तरीके से एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके करना है, ताकि सरप्लस भी ना हो और डेफिसिट भी ना हो, एक बैलेंस पे आए। यदि नहीं भी आया तो आपको इस एनालाइजिंग द गैप में उसको ढूंढ के निकालना, यू हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर गैप एंड यू हैव टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू, आइदर इट कैन बी सरप्लस और द डेफिसिट। जैसे होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इम्प्लीमेंटेशन, next one is the implementation of human resource planning, ठीक है, एचआरपी को हम इंप्लीमेंट करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जब आपका सारा गैप वगैरह सारा एनालाइज हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कर लिए, करंट मैन पावर सिचुएशन क्या है वो निकाल लिए, डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग हो गया, मैन पावर गैप एनालाइज कर दिए, लास्ट क्या है भाई, हमको नाउ वी हैव टू एक्चुअली एग्जीक्यूट मींस द इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू इंप्लीमेंट इनटू द ग्राउंड लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या करना है भाई, आप उसके लिए ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं कि भाई इतना मैन पावर मेरा एस्टिमेट हुआ है, सपोज 500 मैन पावर एस्टिमेट हो गया है कि इस बार हम लोग को 500 मैन पावर लेना है। सो हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग द 500 मैन पावर रिक्वायर्ड, इस बार लगेगा इस साल में टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यही तो काम है, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करेंगे भाई, आइदर हम लोग इंटरनल से लेंगे कि एक्सटर्नल से लेंगे, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट है फॉलो अप एंड कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है, फॉलो अप एंड कंट्रोल, ओके। नेक्स्ट वन इज द फॉलो अप एंड कंट्रोल, ओके। सो फॉलो अप एंड कंट्रोल में क्या करना है भाई, देखना है कि भाई मेरा जो हमने एचआरपी बनाया है, जो प्लानिंग बनाया है, जो पॉलिसी प्रोसीड्यूर बनाया है, वो सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं इन द ऑर्गेनाइजेशन, बस यही करना है, बस इतना ही है। तो हम लोग एक बार रफ फिर से ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है यू हैव टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है भाई, यू हैव टू एनालाइज द करंट मैन पावर सिचुएशन, सेकंड है ये। थर्ड स्टेप क्या है, यू हैव टू फोरकास्ट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मैन पावर। फोर्थ क्या है, वी हैव टू एनालाइज द मैन पावर गैप, आपका जो गैप निकला है मैन पावर वो आपको एनालाइज करना है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट वन है फॉलो अप एंड कंट्रोल।
यही है टोटल एचआरपी प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, फॉर द एनी एग्जामिनेशन, किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन हो, जो लोग एचआर लिए हैं उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये है मेरा आज का टोटल, इसी में एंड करते हैं आज के लिए। ठीक है, और लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब को करते रहे, नहीं तो प्रॉब्लम में फंसते रहे।